So welcome all to Dr. MDS Academy. So in heat transfer, our next chapter is radiation. So this is a long chapter. So I have divided this chapter into three different parts. So in first part, I am going to cover based on the Planck's law equation, how the heat transfer takes place. So questions being asked on this equation, we will solve that. This is our Planck's law equation. Okay. Given as E lambda B depends upon lambda and T, function of wavelength and temperature and the surface character. And then after we'll try to solve Stephen Boltzmann equation. So based on these equations, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ concepts को समझेंगे. Then lambda max into T is equal to 0.0029. You have to memorize this because direct and objective question is being asked. So this comes from the Wien's displacement law. Okay. So a remaining part we will cover in the next part. So अभी जितने topics discuss किए हैं we will solve those. Okay. जो हम लोगों का previous year questions. So let's solve from equation 1. Question number 1. Okay. क्या बोल रहा है? Gate 1 का question. The following figure was generated from the experimental data relating a spectral black body emission power to wavelength at three different temperatures T1, T2 and okay, this is the graph given. क्या ये सही है क्या? Okay, since we know that Wien's displacement क्या होता है? Lambda max into T equal to 0.0029. ओके, ये मीटर हो गया तो मीटर और ये टेम्परेचर केल्विन. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये मीन्स विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से आता है. ई लेमडा बी कैसे आता है? देखो, ई लेमडा बी प्लैंक्स लॉ इक्वेशन क्या बोलता है? प्लैंक्स लॉ इक्वेशन इज इक्वल टू क्या बोलता है? ई लेमडा बी इज इक्वल टू 2 पाई सी स्क्वायर 2 पाई सी स्क्वायर एच lambda to the power minus 5 upon exponential h upon lambda e into t minus 1. Okay, since 2 pi c square is 3 into 10 to the power 8 per second is per second speed of light, Planck's constant which is given as 6.65. Okay, this is our 3 into 10 to the power 8 meter per second. And h is what? H is 6.625 into 10 to the power minus 34 joule second. Okay, this is our joules constant. Okay, K is क्या? K is Boltzmann constant. Boltzmann constant. ठीक है? And T and lambda are the variables here. The absolute temperature and lambda is the wavelength. So finally, E lambda B we are getting. B means black. Here is black. For the black body we are talking. And lambda is monochromatic wavelength. Okay. So C1 can we put? C1 2 pi C square H are constant. C1 we have put here into 10 to the power minus 5 variable upon exponential C constant, H constant, K constant. So C2 I have put here upon lambda and T are variables. Okay, minus 1. Okay, so these things. अब देखो, यदि टी ई लेमडा पी अपॉन टी लेमडा से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते इक्वल टू जीरो करते हैं. ओके, जीरो करते हैं मीन्स
for maximum E lambda b or emissive power we will be getting E lambda max equal to 0.0029 meter K. We will get these values. ठीक है, क्यों ऐसे आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये आ रहा है, ये C1 का यहाँ पर एक वैल्यू होगा। C1 क्या आएगा? C1 क्या आएगा? 2 पाई c² इंटू एच। थ्री इंटू 10⁻8 पुट करेंगे एच, ये वैल्यू पुट करेंगे 6.625 इंटू 10⁻24। ओके, ये आ गया। C2 इक्वल टू बोल्टाजमैन लॉ कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो CH अपॉन K, यदि ये डिवाइड करते हैं हम लोग C1 और ये, तो वी विल बी अल्टीमेटली गेटिंग दिस। तो इस इक्वेशन से क्या आता है समझ में कि लेम्डा मैक्स, ओके, or you can say that Wien's displacement law states that product of the absolute temperature and wavelength for maximum emissive power is constant, that is 0.0029 meter Kelvin. Okay, so is equal to constant, or you can say lambda max K inversely proportional to T. Okay, तो यू कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लेमडा घटेगा, और लेमडा मैक्स हमें बढ़ाना है, ठीक है, यानी कि लेमडा मैक्स इधर बढ़ाना है टेम्परेचर को, ठीक है, घटना पड़ेगा बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, जैसे जैसे लेमडा बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है, लेकिन स्टीफन बोल्ट्जमैन क्या बोलता है? नॉट सेटिस्फाइड। क्यों नॉट सेटिस्फाइड? क्यों नॉट सेटिस्फाइड, इसका एग्जैक्ट फिगर बनता कैसा है? एग्जैक्ट फिगर कैसे बनता है? यदि मेरे पास ये है, ठीक है, ई लेमडा पी है और ये लेमडा है, और ये 0 0 से, तो कैसे स्टार्ट होता है? ये ऐसे स्टार्ट ना, ये ऐसे, तो ये टेम्परेचर सपोज T1 है, ये ऐसे आएगा T2, ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये T3, where T1 is greater than T greater than, ओके क्लियर, यानी कि जैसे जैसे लेमडा मैक्स बढ़ रहा है हम लोगों का, ओके, टेम्परेचर क्या हो रहा है? घट रहा है, और ये हमेशा ये स्ट्रेट लाइन ना होके ये स्ट्रेट लाइन ऐसे हो, ठीक है, थोड़ा हाई टेम्परेचर, ओके, मीन्स T1 for max at vary at maximum E lambda b shifts towards shorter lambda, ठीक है, यहाँ पर देखो, देखो यहाँ लेमडा 1 हो गया, लेमडा 2 हो गया, लेमडा, ठीक है, मैक्सिमम इसी पावर जो मिल रहा है
ये जो मैक्सिमम इमिसिव पावर मिल रहा है, ये जो मैक्सिमम इमिसिव पावर मिल रहा है, ठीक है, हमेशा शॉर्टर वेवलेंथ के लिए मिलता है। हियर T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, और यू कह सकते हैं ई लेमडा P1 ग्रेटर देन ई लेमडा B2 greater than E lambda P3, और lambda 1 less than lambda 2 less than lambda 3। ठीक है, ये कैसे आ रहा है? ये सब का सब इस वजह से आ रहा है कि लेमडा बढ़ाते जाओ और घटाते जाओ। ओके, तो घटाएंगे जैसे हम लोग, जैसे लेमडा हम लोग डिक्रीज करेंगे, ठीक है, यानी कि लेमडा 3 से लेमडा 1 की ओर जाएंगे, और मैक्सिमम मिलेगा और हाई टेम्परेचर। ओके, तो ये हमेशा, ये रॉन्ग है, इस तरीके से नहीं आएगा, ये इस तरीके से, ठीक है, तो रॉन्ग है, क्योंकि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के ये नहीं होगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन नहीं होगा, वीन्स क्यों? वीन्स डिस्प्लेसमेंट इसी को बोलते हैं ना, जहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसी को करके तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, है ना, ये इसी को बोलते हैं स्टीन वीन्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमेशा इस तरीके से कर्व को फॉलो करना चाहिए, लाइक दिस, ये इस तरीके से, ऐसे, दिस वन, ओके, ना कि इसका अपोजिट। ठीक है, so understood, so answer will be what? D. now नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है? ए 100 watt electric bulb was switched on in a 2.5 meter into 3 meter into meter size thermally insulated room having a temperature 20 degrees Celsius. The room temperature at the end of 24 hours will be। देखो, एक बल्ब है हम लोगों का, एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है, नहीं, ये 20 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हमें डिटरमाइन करना है, और ये इसके चारों तरफ क्या है? रूम है, रूम है, ये है रूम, इसका साइज दे रखा है 2.5 मीटर, 3 मीटर, और ये 3 मीटर हाइट दे रहा है रूम। ठीक है, 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस क्या दे रखा है? रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, यानी एयर का टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर 24 आवर्स के बाद क्या हो जाए, ठीक है, ये टेम्परेचर हमें जानना है। आफ्टर व्हाट? आफ्टर 24 आवर्स। तो देखा जाए, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला ये दिख रहा है, Q इज इक्वल टू क्या जानते हैं? Q इज इक्वल टू क्या जानते हैं? Q इज इक्वल टू MC dt, है ना। Q का यूनिट क्या होता है? जूल, ना कि वाट, ठीक है। पूरे हीट ट्रांसफर में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का जो होगा वो वाट होता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का यूनिट जो होता है हमें वाट आता है और जूल पर सेकेंड। लेकिन
हीट कैपेसिटी जहाँ है Q इज इक्वल टू MC dt। ये तो ना कंडक्शन है, कन्वेक्शन और रेडिएशन। यूनिट इज जूल। ठीक है, इसका यूनिट क्या है? जूल। हमें क्या दे रखा है? एक दे रखा है इसका वाट में, यानी जूल पर सेकंड में दे रखा है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर क्या, 100 जूल पर सेकंड है। टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड में जूल आ जाएगा। ठीक है, टाइम से कैसे मल्टीप्लाई करें? 24 आवर्स दे रखा है, 4 इंटू 3600 सेकंड में किए कन्वर्ट, आवर को सेकंड से इंटू सेकंड, तो सेकंड से सेकंड गया तो जूल आ गया लेफ्ट साइड। अब मैं राइट साइड वाले में ये इक्वेशन बैठा सकता हूँ, क्योंकि राइट साइड का भी तो वही है ना, यूनिट जूल में ही होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड का यूनिट बराबर होना चाहिए। बराबर कर दिया लेफ्ट साइड का जूल में, वाट में जो था, इज इक्वल टू एम। मास कितना है? मास कितना है? नहीं दे रखा है। ठीक है, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। कह सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सी, सी क्या है? हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, चेंज इन टेम्परेचर dt। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 100 इंटू 24 इंटू 600 इज इक्वल टू डेंसिटी। एयर का डेंसिटी ना, एयर ही तो हीट हो रहा है, 1.2 होता है क्या? ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर होता है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, ये याद करना है। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है एयर का? ये 2.5 इंटू 3 इंटू 3, वी विल डू हियर 2.5 इंटू 3 इंटू 3, वॉल्यूम आ गया। हीट कैपेसिटी कितना है एयर का? कितना होता है? देखो, सी वाटर का कितना होता है हीट कैपेसिटी? 4.186 किलो जूल, है ना। सी का किलो जूल पर केजी डिग्री, है ना। सी को किलो जूल पर केजी डिग्री, है ना। किलो जूल ये हो गया, केजी ये हो गया, नीचे गया तो dt इधर डिग्री हो गया, इंडियन टेम्परेचर केल्विन भी कह सकते। एयर का, ठीक है, तो यहाँ पर देखो सीपी आता है और एक सीपी आता है। सीपी का याद करना होगा हमें, 1.005 यूनिट वाई होगा, किलो जूल पर केजी डिग्री, है ना। और सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए 0.771, ठीक है, ऐसा कुछ आता है, किलो जूल पर केजी डिग्री, है ना। ये अब देखो, ये वाला तो एयर के लिए, तो एयर ही को तो हीट करना है रूम, तो वी विल चूज दिस। ये लें, ये वाला लें कि ये वाला लें? सीपी लें या सीवी लें? सी लें या सीवी लें? ये लें कि ये लें? ऐसी बात है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, रूम का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वी विल चूज दिस वन, कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, तो क्या आ रहा है? 0.71 किलो जूल में है, स्टैंडर्ड यूनिट में सभी को ला रहे 10 पावर 3। ओके, देन चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर सपोज टी रीच किया, ये वाला टी टेम्परेचर रीच किया, है ना। ओरिजिनल कितना टेम्परेचर था? चेंज करना है तो 25 कर दो, केल्विन में भी कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस हमेशा कोई सा भी यूनिट में लो, डिफरेंस तो वही यूनिट में आएगा। ठीक है, तो फाइनली आफ्टर कैलकुलेशन हाउ मच वी आर गेटिंग, है ना। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये आ रहा है 100 इंटू 24 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई
1.2 into 2.5 into 3 into 3 into 0.7 1 into 1000, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। अब टी निकालो, +25 होगा, इसमें कर देते हैं +25। तो फाइनली डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस में था ना, 25 डिग्री सेल्सियस, तो 475 आ रहा है, 475.70 ये आ रहा है टी में डिग्री सेल्सियस है। तो फाइनली ये आंसर हमें आ रहा है 475। 475, तो आंसर नियर टू जो है 470 ये होगा आंसर। नियर टू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं जो वैल्यू एयर का डेंसिटी होगा 1.25 23 ऐसे होगा, और सीवी का वैल्यू 0.717 लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू तो दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, दैट्स व्हाई वी हैव बेस्ड ऑन आवर मेमोरी वी हैव सॉल्व दिस, बट क्लोज, बट द आंसर करेक्ट आंसर इज 470 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये 2022 में पूछा गया है। A flat plate made of cast iron is exposed to a solar flux of 600 watt per meter square at an ambient temperature of 25 डिग्री। एक प्लेट है मेरे पास, ठीक है, फ्लैट प्लेट है जो कि कास्ट आयरन का बना हुआ है, एक्सपोज टू सोलर फ्लक्स, यहाँ से ये आ रहा है जो कि 600 वाट पर मीटर स्क्वायर से सन से आ रहा है एट एम्बिएंट टेम्परेचर। इसका बाहर का एयर का टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर ऑफ एम्बिएंट या 25 डिग्री सेल्सियस। एज्यूम दैट द इंटायर सोलर फ्लक्स, ठीक है, इज ऑब्जर्व बाय द प्लेट, ठीक है, ये प्लेट ऑब्जर्व करता है। कास्ट आयरन हैज लो टेम्परेचर ऑब्जर्विटी, ये अल्फा का वैल्यू दे रखा है 0.21। यूज स्टेफन बोल्टाजमैन कांस्टेंट, ये वैल्यू नेग्लेक्ट ऑल अदर मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर एक्सेप्ट रेडिएशन, यानी कंडक्शन और कन्वेक्शन को छोड़ देना है, ठीक है, ओनली रेडिएशन वी हैव टू यूज, मींस रेडिएशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। अंडर द aforementioned condition the radiation equilibrium temperature of the plate is, फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो, ये जिससे वो फर्दर वो एयर को रेडिएट करे। देखो यहाँ पर हीट दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, तो स्टीफन बोल्टाजमैन इक्वेशन क्या होता है, ई, ठीक है, पी ब्लैक बॉडी के लिए सिग्मा बी के ए सिग्मा बी टू टी टू पावर 4, बेसिक फंडामेंटल भी नो, ब्लैक बॉडी यदि रेडिएट, ये तो ब्लैक बॉडी है नहीं, है ना। देखो पर यूनिट एरिया दे रखा है, तो और मैं क्या लिख सकता हूँ, ई पी, इसका यूनिट क्या है, यूनिट क्या है वाट, नीचे में मीटर स्क्वायर लाना है, इस यूनिट इसको बराबर करने के लिए ऐसे लिखने के लिए अपॉन ए कर दें, क्या इसको ए को इधर कर दें, नीचे ले आए, ओके, यूनिट क्या आ गया वाट पर मीटर स्क्वायर। एक डेटा 600 डेटा वैल्यू पुट कर सकते हैं इजीली, यहाँ पर बैठा दिए सिग्मा बी टी टू पावर 4, ओके, ये तो आ गया मेरे पास।
लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ब्लैक बॉडी नहीं है, तो क्या है, ऑब्जर्वेटिव इसीलिए दे रखा है। यहाँ पर सेम फॉर्मूला को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फॉर नॉन ब्लैक बॉडी, फॉर नॉन ब्लैक बॉडी के लिए ईबी के जगह ई लिखेंगे, सिग्मा बी, एरिया तो वही रहेगा ना, ब्लैक बॉडी हो चाहे नॉन ब्लैक बॉडी, ये सिग्मा बी के जगह अल्फा इंटू सिग्मा बी होता है, ठीक है, इंटू टू द पावर 4, है ना। अब देखो सिग्मा बी, हाँ सिग्मा बी, ओके, ये किसके लिए है, ये नॉन ब्लैक बॉडी के लिए होगी। अल्फा का वैल्यू, यहाँ अल्फा का वैल्यू ब्लैक बॉडी का कितना था, ठीक है, 1 इंटू सिग्मा बी टू द पावर 4, ठीक है, सिग्मा बी टू द पावर 4। हमेशा अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ठीक है, क्योंकि वी नो दैट अल्फा प्लस रो प्लस ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू 1, ऑब्जर्वेटिव रिफ्लेक्टिविटी ट्रांसमिसिबिलिटी 1, ब्लैक बॉडी के लिए है तो ये दोनों 0 हो जाएगा, ठीक है, और ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी के लिए अल्फा विल बी इक्वल टू 1, है ना, तो अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा। तो यहाँ पर हम लोग नॉन ब्लैक बॉडी के लिए 1 से कमी होगा, तो अल्फा इंटू सिग्मा बी वैल्यू पुट 0.25 टू 1, ठीक, ये नॉन ब्लैक बॉडी, ये वाला इक्वेशन तो दे रखा है, इसके लिए यूज करें। लेकिन यहाँ दो टेम्परेचर दे रखा है, एक 25 डिग्री दे रखा है और दूसरा बोल रहा है इक्विलिब्रियम फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं क्या, E इज अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा सिग्मा बी, दो टेम्परेचर दे रखा है, तो टी 1 टू द पावर T2, ठीक है, सपोज ये T1 टेम्परेचर दे रखा है, तो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर जो कि ये है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ये वाला, ये टेम्परेचर T2 बोल रहा है निकालने के लिए, है ना। तो ठीक है, ये T1 है तो T2 बोल, तो T2 टू द पावर 4 माइनस T1 टू द पावर, है ना, तो E अपॉन ए दे रखा है क्या, 600 वाट पर मीटर स्क्वायर, है ना, वाट पर मीटर स्क्वायर ये वाला, इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू 0.21, सिग्मा बी दे रखा है 5.6, 5.669 और माइनस 8 स्टैंडर्ड यूनिट में है, ठीक है, इंटू T2, T2 टेम्परेचर तो निकालना है, T2 पावर 4 माइनस T1 टू दी पावर 4, देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, करेंगे कन्वर्ट केल्विन में, बिकॉज रेडिएशन में हमेशा और हमेशा केल्विन में लेके चलते हैं, नहीं तो यहाँ भी देख सकते हो के में दे रखा है ना, तो हमें के में ही केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। 25 प्लस 273 कितना आता है, 892, ये ओके, 298, 298 टू दी पावर 4, है ना। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, T2 निकालना, ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग कैलकुलेटर यूज करके। 600 डिवाइडेड बाई 0.21 इंटू 5.669 इंटू 10 टू पावर -8, ठीक है, ये आ रहा है इतना, है ना, प्लस
ठीक है, प्लस मतलब ये वाला 298 टू पावर 4 इधर जाएगा लेफ्ट साइड में, प्लस होगा, प्लस 298 की पावर 4, है ना, ये आ गया इतना, टू दी पावर फिर 1/4 करेंगे, 1/4 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, तो ये आएगा फाइनली T2 491, तो T2 we are getting is 491, T49.349, ये किस में आएगा, केल्विन में आएगा, ये इसमें आएगा, ठीक है। हमें 491.349 आ रहा है, तो हमें डिग्री सेल्सियस में करना है, -273 कर दो यहाँ पर, 0.349 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो 7 8 1, ठीक है, 218.349, ठीक है, इंटीजर में बोल रहा है ना, हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 218 डिग्री सेल्सियस, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम क्वेश्चन 2003 में पूछा है, ए बॉडी एट 500 K cools by radiating heat to ambient atmosphere maintained at 300 K. When the body has cooled 400 K, the cooling rate as a percentage of original cooling rate is about, ठीक है, यानी रेशियो बोला है, एक बॉडी है जो 500 K पे रखा हुआ है, वो कूल हो रहा है बाय रेडिएशन, कितने तक जा रहा है, 300 K तक, रेडिएटिंग बोल रहा है, यानी कि रेडिएशन वाला इक्वेशन, 500 K से कूल होकर 300 K पर जा रहा है। सेम बॉडी, दूसरा कंडीशन दे रखा है, सेम बॉडी यदि कूल हो रहा है 400 K तक, 400 K तक आ कितने पर, 500, ठीक है, दो अलग अलग कंडीशन है सेम बॉडी के लिए, ठीक है, बोल रहा था कूलिंग रेट एट ए परसेंट एज ए परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कूलिंग रेट, यानी ओरिजिनल तो ये हो गया, है ना, ओरिजिनल ये हो गया, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, अब देखो फॉर्मूला क्या मालूम है हमें, Q इज इक्वल टू A सिग्मा सिग्मा B टी टू द पावर 4, यानी T1 टू द पावर 4 या T2 टू द पावर 4 माइनस T1 टू द पावर 4, ये ए कंडीशन, ये ए हो गया, ये है ना। अब देखो Q सेम बॉडी है, ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा बी T2 द पावर 4 माइनस T1 टू द पावर 4, ऐसे सेम बॉडी है ना, एरिया भी वही होगा, इसको ओरिजिनल ऐसे करो फाइनल, ठीक है, तो यहाँ पर देखो Q अपॉन A, ठीक है, ओरिजिनल के लिए या इनिशियल करो, आई करो इनिशियल, है ना, सिंबल को लेकर थोड़ा ज्यादा इनिशियल, है ना, इज इक्वल टू सिग्मा बी, T1 कितना, T2 कितना फाइनल टेम्परेचर, है ना, तो यहाँ पर बड़ा माइनस छोटा, छोटा माइनस बड़ा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, 500
टू द पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4। ठीक है, फाइनल के लिए ये आई के लिए था, ये एफ के, क्यू अपॉन ए, ठीक है, इजिकल टू, ये आई हो गया, ये फाइनल हो गया, ठीक है। सिग्मा बी फाइनल 500 टू द पावर 4 माइनस 400 टू द पावर 4, ऐसे आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, 500, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले इनिशियल को, 500 टू द पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4, ठीक है। ये आ रहा है 5.44 इंटू 10 पावर 10, 5.44 इंटू 10 पावर 10, ठीक है। अब नीचे वाला का कितना आ रहा है, ये आ रहा है 500 टू द पावर 4 माइ 500 टू द पावर 4 माइनस 400 टू द पावर 4, ठीक है। वी आर गेटिंग दिस 3.69 10 पावर 10, 3.69 इंटू 10 पावर 10। तो ये आ रहा है। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कूलिंग रेट, परसेंटेज यानी कि ओरिजिनल, क्यू, यहाँ पर क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन क्यू ओरिजिनल से करना है, इंटू 100 कर दो, यही तो पूछा है ना। क्यू एफ कितना है, सिग्मा बी से मल्टीप्लाई होगा, सिग्मा बी से मल्टीप्लाई, ठीक है। क्यू एफ बराबर कितना है, 3.69 इंटू 10 पावर 10 सिग्मा बी इंटू ए कर दो, है ना। क्यू एफ निकालने के लिए, यहाँ पर ये निकालने के लिए माइनस माइनस सिग्मा क्यू आई निकालने के लिए 5.44 इंटू 10 पावर 10 सिग्मा बी इंटू ए को मल्टीप्लीकेशन किए, नीचे कितना है, क्यू आई है ना। क्यू आई कितना है, 5.44 इंटू 10 पावर 10 सिग्मा बी इंटू ए इंटू 100 कर दो परसेंटेज के लिए, ठीक है। यही तो पूछा था। तो फाइनली हमें कितना आ रहा है, 3.69, ठीक है। सिंप्लीफाइड हो रहा है सारा, 5.44 माइनस 1, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल होगा ना, पूरा का पूरा, है ना। तो ये आ रहा है हमें इंटू, फाइनली हमें क्या आ रहा है, सिंप्लीफाइड करके 3.69 डिवाइडेड बाई 5.44, है ना, माइनस वन इंटू 100, ठीक है। तो डेसिमल में कितना आ रहा है, 32.169। ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि छोटे टर्म को बड़े टर्म से माइनस किए, कितना आ रहा है, 32.169, 32.169, ये परसेंटेज में आ रहा है, ठीक है। 32.169, 32.169, ये अप्रोक्स, एग्जैक्ट आंसर इज 32.16। कहीं भी सॉल्यूशन देखोगे राउंड ऑफ अप्रॉक्स 31.1 है, तो आंसर इज बोथ करेक्ट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि 2000 इंजीनियरिंग सर्विस
एग्जाम में पूछा है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में। क्या है, सोलर रेडिएशन ऑफ 1200 वाट पर मीटर स्क्वायर फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन ए ग्रे ओपेक सरफेस। ठीक है, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ओपेक सरफेस होता क्या है। ये ओपेक सरफेस, ओपेक, और या बोलेंगे नॉन ब्लैक सरफेस। जब भी हम लोग फिजिक्स लैब में लाइट का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ओपेक रखा जाता है हमें, क्या, रूम को, है ना। क्यों रखते हैं, क्योंकि जो भी लाइट वहां से गुजरे ट्रांसमिट ना हो। तो ट्रांसमिसिबिलिटी जो होता है ओपेक का, हमेशा हमेशा जीरो। बचा क्या, अल्फा प्लस रो प्लस, ये होता है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये तो जीरो हो गया ओपेक के लिए। तो अल्फा प्लस रो इक्वल टू 1, ये आता है ओपेक, है ना। यदि मेरे पास ये ओपेक बॉडी है, मेरे पास ये ओपेक बॉडी है, क्या बोल रहा है, कितना वाट का परपेंडिकुलरली फॉल हो रहा है, कितना वाट का, 100 वाट पर मीटर इज ऑन ए ग्रे ओपेक सरफेस, यानी ग्रे मतलब कि एक इमिसिबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल वेवलेंथ एंड टेम्परेचर सरफेस ऑफ, ये नेक्स्ट हम लोग पार्ट में देखेंगे क्यों कांस्टेंट। ओपेक सरफेस ऑफ इमिसिबिलिटी, जिसका दे रखा है, इमिसिबिलिटी कितना दे रखा है इसका, 0.5। इफ द सरफेस टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस, मेंटेन्ड है 50 डिग्री सेल्सियस पर, द सरफेस इमिसिव पावर 600 वाट एंड रेडियोसिटी ऑफ दैट विल बी, देखो जब भी हम लोगों का ऐसा कंडीशन है, तो जब भी हम लोगों का हीट यहाँ पर गिर रहा है, यहाँ से ये पोर्शन निकलेगा, सपोज दिस इज अवर जी, इस जी को बोलते हैं ई रेडिएशन, क्या बोलते हैं, ई रेडिएशन, है ना। इस ई रेडिएशन का कुछ पोर्शन हमें रिफ्लेक्ट हो, जिसको बोलते हैं क्या है हम लोग, रिफ्लेक्टेड पोर्शन ऑफ ई रेडिएशन, ई रेडिएशन, ठीक है, क्या होगा, रो इंटू जी। रो क्या है, रिफ्लेक्टेड, कौन सा, रिफ्लेक्टिविटी 0.2 0.3 0.5 ये होता है वैल्यू, जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये रिफ्लेक्टेड, मतलब इस रे से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट्स द रिफ्लेक्ट। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बता दूं, इसमें एक और रे निकलता है, कौन सा रे, ये वाला, इसको बोलते हैं इमिटेंस, इमिटेंस, ठीक है, इसको ई बोलते हैं। ठीक है, ये इमिटेंस कैसे हो रहा है, कोई भी बॉडी के ऊपर यदि लाइट फॉल होता है तो उसका एटॉमिक या लैटिस या मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा, ठीक, या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, रिएक्शंस मतलब बॉन्डिंग बनाएगा, ओके, एटॉमिक बॉन्डिंग बनाएगा, ओके, तो वहां पर कुछ ना कुछ हीट, वो खुद सेल्फ हीट जनरेट करेगा, है ना। तो दिस इज आवर इमिटेंस, तो कुछ ना कुछ एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, इस जी के अलावा जो एटॉमिक क्रिस्टल है, कुछ ना कुछ बॉन्डिंग हो रहा होगा, फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, दो एटम्स के बीच में, लैटिस के बीच में, तो वो अपना एक एक्सोथर्मिक हीट रिलीज करेगी, दिस इज नोन एज इमिटेंस। तो इन दोनों को सम को बोलते हैं रेडियोसिटी, रेडियोसिटी, इसको जे से डिनोट कर, तो जे बराबर सम ऑफ ई प्लस रो इंटू जी, ये ई हो गया, ये रो जी, दोनों का सम को रेडियोसिटी, है ना।
तो हमें पूछा क्या रेडियोसिटी ऑफ दैट सरफेस विल बी। तो रेडियोसिटी क्या होगा, रेडियोसिटी J बराबर E प्लस रो इंटू जी। ठीक है, हमें कुछ क्या क्या दे रखा है, एक और कुछ दे रखा है, ये तो दे रखा है जी, है ना, और इमिसिव पावर दे रखा है 600, यानी कि ई का वैल्यू दे रखा है 600, है ना। इमिसिव पावर ना, यूनिट क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, जी दे रखा है 1200 वाट पर मीटर। ठीक है, ये यहाँ से हमें यहाँ पर रो को लेकर थोड़ा चिंता। ठीक है, लेकिन एक ई दे रखा है यहाँ पर, इमिसिबिलिटी दे रखा है 0.5। ठीक है, इमिसिबिलिटी 0.5। देखो किर्चॉफ्स लॉ क्या बोलता है, किर्चॉफ्स लॉ बोलता है, लॉ क्या बोलता है, यदि दो बॉडी 1 and 2, this is our T1 temperature, T2 temperature, if T1 equal to T2, then alpha 1 alpha is equal to इमिसिबिलिटी, है ना, इमिसिबिलिटी। तो ये जो इमिसिबिलिटी दे रखा है सेम एस अल्फा होगा ना, है ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, रो बराबर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा तो दे रखा है 1 माइनस 0.5, इमिसिबिलिटी को ऑब्जर्वेटिव बोलते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेटिव T इज इक्वल टू इमिसिबिलिटी। ठीक है, मतलब जितना एक सरफेस है ऑब्जर्व कर रहा है, इमिट भी उतना ही कर रहा है, मतलब 0.25 ऑब्जर्व कर रहा है, 0.5 ऑब्जर्व कर रहा है, 0.5 रिलीज भी कर रहा है। तो क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, सेम टेम्परेचर में है दोनों बॉडी। ठीक है, यदि ये 0.5 रिलीज कर रहा है और 0.5 ऑब्जर्व भी कर रहा है, मतलब ये दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ना, तभी तो, इसीलिए किर्चॉफ्स लॉ यहाँ पर यूज। ठीक है, तो इसीलिए अल्फा इज इक्वल टू इमिसिबिलिटी यहाँ पर की, अल्फा इज इक्वल टू, है ना, अल्फा इज इक्वल टू इमिसिबिलिटी, बिकॉज both surface in equilibrium। ठीक है, तो कितना आ रहा है 0.5, है ना। फर्दर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर, तो J बराबर E प्लस रो, E दे रखा है 600, रो क्या निकालें 0.5 ना, हियर 0.5 इंटू जी कितना है 1200, 1200, फाइनली 600 प्लस 600 इज इक्वल टू 1200, यूनिट तो वही रहेगा वाट पर मीटर, वाट पर मीटर, 1200 वाट पर मीटर, 1200 watt per meter। Okay, so कुछ फर्स्ट पार्ट का we had solved some of the previous year asked questions। Okay, similarly in the next part we will be covering what is shape factors, configuration factors, okay, for the different geometries। Okay, और भी कुछ numericals we will be solving। Okay, so those are the important parts। So please share these lectures with other students ताकि प्रिपरेशन में उन्हें हेल्प मिले। ओके, so thank you all, so we will meet in the next lecture।